احمد نیازی کے جتنے فیصلے ہیں ایک روحانیت کا لبادہ اوڑے ان کی اہلیہ اثر انداز ہوتی تھی سرکاری فیصلوں کے اوپر۔ موجودہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اس وقت تک پاکستان کے چیف جسٹس رہے جب تک اس کا یہ آفس ہے، لیکن ہم اس بل کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ انہی ترمیم کے تحت ایک پراپر پروسیجرز ہیں اور پراپر قانون کا اور ضابطہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بنایا گیا ہے۔ کسی کی پسند ناپسند پہ یہ فیصلے نہیں ہوتے، یہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ ویلکم ٹو نیوز لائن، میں ہوں ڈاکٹر ماری ذوالفقار خان۔ ویوز، بشرا بی بی کی روحانی اثر کے نتیجے میں بانی چیئرمین اپنا اصلاحی ایجنڈا نافذ کرنے میں ناکام۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کا اہم انکشاف جو کہ آج سامنے آیا ہے۔ دی اکانومسٹ کے مطابق 2018 میں عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد بشرا بی بی کا کردار سیاسی بحث کا جو ہے وہ اس وقت سیاسی بحث میں جو ہے وہ موضوع بن گیا، اور اکانومسٹ نے اہم انکشاف یہ بھی کیا ہے کہ بشرا بی بی کے آنے کے بعد بنی گالہ میں مرچیں جلانا، بکرے کے سر قبرستان میں پھینکوانا، اس طرح کی عجیب جو ہے وہ رسومات جو ہیں وہ شروع ہو گئی۔ اگرچہ بانی چیئرمین کے حوالے سے اور بشرا بی بی کے حکومتی امور چلانے کے بارے میں پہلے بھی میڈیا پر بہت بحث ہوتی رہی ہے، مگر برطانوی جریدے میں یہ خبر شائع ہونا کے بعد اس کی ٹائمنگ پر بھی جو ہے وہ بہت سوالات جو ہیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے اس آرٹیکل کے خلاف کورٹ جانے کا اعلان تو کیا ہے، مگر کیا واقعی تحریک انصاف عدالت جائے گی یا صرف یہ ایک سیاسی بیان تک ہی جو ہے وہ محدود رہ جائے گا، اور کیا تحریک انصاف کے عدالت جانے سے اس کا کوئی فائدہ ہوگا بھی یا نہیں؟ اب ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس پولرائزڈ ماحول میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت اگر دیکھا جائے تو معاملات جو ہیں وہ کہیں طے نہیں پا رہے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے دیکھیں یا پولیٹیکل کنسنسس، پولیٹیکل پولرائزیشن جس طرح بڑھ رہی ہے، آئے دن جس طرح تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، جو سویلین لیڈرشپ ہے اور جو ہماری عسکری قیادت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح جو پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں وہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں اور کس قسم کا زہر جو ہے وہ اگلتے ہیں، اور اس کے بعد اس آرٹیکل کا آنا، تو سوال تو یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے کہ اور حکومت سے پوچھیں گے بھی کہ کیا حکومت یہ چاہتی ہے اور کیا حکومت جو اس پہ کوئی غور و فکر کر رہی ہے کہ آرٹیکل 63(1)B کے تحت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی جو ہے وہ فیوچر میں بھی جو ہے وہ کوئی کارروائی جو ہے وہ کی جائے، بیکاز آلریڈی وہ ڈسکوالیفائڈ تو ہیں، بٹ دس پٹس سیریس کویسچن مارکس آن ہز سینٹی، ان کی مینٹل اسٹیٹ آف مائنڈ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے سیویئر جو ہیں وہ کویسچنز اٹھائے جاتے ہیں، کیونکہ 63(1)B اگر میں پڑھ دوں تو اس میں پرسن شیل بی ڈسکوالیفائڈ فرام بینگ الیکٹڈ اور چوزن ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ if he is of unsound mind and has been so declared by a competent court۔ تو یہ بھی چیزیں جو ہیں یہ دیکھنی ہوں گی کہ آنے والے دنوں میں کیا اس کا بھی کوئی سہارا جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ آلریڈی وہ ڈسکوالیفائڈ تو ہیں، بٹ آگے جا کے اس کو بھی کوئی بنا کے پارٹی کی جو کمان ہے ان سے جو ہے وہ ان سے الگ کر دی جاتی ہے، کس طرح اس کو دیکھ رہی ہے حکومت، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ دو ایسے آج لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو بڑی غور سے دیکھا ہے، پی ٹی آئی کو بڑی کلوزلی جو ہے وہ دیکھا ہے، پی ٹی آئی کا حصہ رہے ہیں، اور بڑے پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ سمجھا جاتا تھا کہ جو بڑے جن کو کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کے بہت بڑے فینز، عمران خان صاحب کے بہت بڑے سپورٹرز، اور فین پہلے تھے اس کے بعد سپورٹرز جو ہیں وہ بن گئے، لیکن پھر انہوں نے پی ٹی آئی سے اپنی راہیں جو ہیں وہ جدا کر لیں، تو بڑا کلوزلی انہوں نے پی ٹی آئی کو دیکھا ہے۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ اب پاکستان مسلم لیگ نواز کا حصہ ہیں، ساتھ ہی ساتھ شیر افضل مروت صاحب اس وقت کسی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ لائن نہیں ہے، ساتھ ہی اپنی پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ ہم گائے بگائے آپ کے سامنے رکھتے بھی رہتے ہیں، ان کے ساتھ ایشوز بھی چل رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ تو مروت صاحب، I'll start off with you۔ یہ جو کانٹینٹس آئے ہیں جو اکانومسٹ کے ہیں، obviously یہ پہلی دفعہ تو بات نہیں ہو رہی، لیکن ایک برطانوی جریدہ جو ہے وہ اس بارے میں لکھ رہا ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ڈیفیمیشن کے بڑے اسٹرانگ لاز ہوتے ہیں اور وداؤٹ اینی ایویڈنس جو ہے یہ لکھا نہیں جا سکتا، تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو کانٹینٹس ہیں ان میں کس حد تک آپ کو صداقت لگتی ہے، آپ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں؟ ڈو یو ٹیک دم سیریسلی اور ڈو یو جسٹ تھنک کہ یہ کوئی یلو جرنلزم جو ہے وہ ہو رہی ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ آپ نے بڑی کلوزلی دیکھا ہے پی ٹی آئی کی ورکنگ کو۔
بہت شکریہ. اس سوال کے دو پہلو ہیں. ایک تو اس آرٹیکل کی ایویڈینشیلی ویلیو کہ اگر یہ چیلنج ہوتا ہے اور جہاں جس طرح کے لاز ہیں یونائٹیڈ کنگڈم میں، اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی تک تو پاکستان میں ایسے گواہ سامنے نہیں آئے ہیں جو ان عوامل کی شہادت دیں. کوئی ایک بھی شخص ایسا جو سمجید نہیں آیا ہے کہ جناب بیویوں کا جو ہے ذبح کیا جانا یا جانوروں کا مارا جانا یا پھر اس طرح جاتی عوامل جو ہیں الزامات لگائے جاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں اور یہ موضوع جو ہے پاکستان میں سب سے زیادہ افواہوں، جذبات، سیاسی پروپیگنڈے، مذہبی رنگ اور شخصیت پرستی کے وجوہات کی بنا پہ کچھ زیادہ اچھالا گیا. آج جو انہوں نے لکھا ہے، آپ یقین کریں 2 سال پہلے سے ان تمام چیزوں کا میں لگتا کہ یہ باتیں کی جاتی ہیں اور جنرل فیض والی بات کا بھی ہمیں علم تھا. یہ قوم پرستی کے حوالے سے، خان کے اصل کے حوالے سے. اصل بات یہ ہے 2 چیزیں کہ خان نے کبھی بھی یہ نہیں چھپایا ہے کہ وہ تصوف طرف رغبت رکھتے، بلکہ انہوں نے بشرت بیوی کو علیحدہ میڈیا پہ اپنا روحانی گائیڈ یا گائیڈ بھی کہا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب گورننس تھی پی ٹی آئی کی، خان صاحب کی، تو اس پر بھی انہوں نے تصوف کی چھاپ رکھی تھی. جس طرح ریاست مدینہ یا جس طرح القادر یونیورسٹی میں جو ہے اس کا نام تھا تصوف یونیورسٹی، یا پھر آپ نے دیکھا القادر یونیورسٹی میں تصوف جو ہے اس کو انہوں نے بطور سبجیکٹ سائنس کا نام دیا ہوا ہے. پھر اگر آپ خان کی زندگی دیکھیں، بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پہ جس طرح وہ گئے، مدینہ منورہ میں جو ہے وہ ننگے پاؤں جو ہے اترے اور چلے، اور یہ چیزیں انہوں نے قوم سے چھپائی تو نہیں. خان صاحب کی والدہ کے انتقال کے بعد ہی وہ تصوف، مسٹیسزم، ایسیٹیسزم کو اور ان چیزوں کو پڑھتے رہے. لیکن بشرا بی بی کے ساتھ جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تو سلسلہ چشتیہ ہے اور سلسلہ یہ مسئلہ تو نہیں ہے تاکہ تصوف کے سلسلہ جات ہے. تو ان کی چھاپ اس وجہ سے زیادہ پڑی کہ خود بشرا بی بی جو ہے وہ پہلے سے جو ہے اس سلسلے سے وابستہ تھی، اور خان صاحب جو ہے وہ کچھ زیادہ جو ہے اس حوالے سے عقیدت جو ہے ان کی بڑی. اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ خان جو ہے اپنی انٹیوشن کے حوالے سے، اپنے اسٹیٹسزم کے حوالے سے اور تصوف کے حوالے سے گائیں بگائیں اپنے قریبی احباب کو بھی بتاتے آئے ہیں کہ بشرا بی بی سے وہ اس حوالے سے مستفید ہوتے آئے ہیں. بشرا بی بی نے کبھی انکار نہیں کیا. مروت صاحب قطع کلامی کی معافی. دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ ایک بڑا پاک رشتہ ہے اور آبویسلی اپنے اسپاؤس سے کوئی آپ نے اگر ایڈوائس لینی ہے اور وہ آپ کا اسپاؤس جو ہے وہ آپ کا گائیڈ بھی ہو، روحانی گائیڈ ہو، تو آبویسلی وہ ایک چیز ہے اور اس پہ جاتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، بٹ سیاست میں جو بشرا بی بی کا یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہے، جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ بات کوئی آ رہی ہے. ابھی خیبر پختونخوا میں جو چینج آیا ہے وہ بھی ان سے ہی ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اون چودھری صاحب والا مسئلہ دیکھ لیں، جہانگیر ترین والا دیکھ لیں، مشال یوسف زئی والا ایشو جو ہے وہ دیکھ لیں، باقی سارے کہاں کھڑے تھے، بشرا بی بی کی سنی جاتی ہے. تو یہ تو بات نہیں ہم کر سکتے نا. اور پھر جو بات کی جا رہی ہے اس میں کہ جو وہاں پہ ریفارمز لانا چاہ رہے تھے وہ لا نہیں پائے اس وجہ سے، وہ بھی ایک وہ بھی ایک اس میں اس کو بھی جو ہے وہ صداقت اس میں نظر آتی ہے. یہ مبالغہ ہی ہوگا کہ میں اگر یہ کہوں کہ جی یہ باتیں جو ہے غلط ہے. بشرا بی بی کا روحانی اثر رسوخ کے علاوہ عملی فیصلوں میں بھی متاثر کن طاقت رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اور چاہے وہ یمین خان تقرری ہو، چاہے گلزار صاحب کی ہو، محمود خان صاحب کی ہو، یا پھر موجودہ سہیل افریدی صاحب کی ہو. یہ 4 بڑی تقرریاں جو ہے یہ اس میں ان کا فیصلہ کن کردار رہا ہے. صحیح. اور یہ خان جو ہے وہ سیاست میں بھی مطلب یہ ہے کہ رہنمائی جو ہے اپنے تئیں وہ اپنی طریقہ حیات سے لیتے رہے ہیں. صحیح. ٹھیک. وہ انکار بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن وہ بار بار یہ کہتے ہیں نا وہ ایک سیاسی خاتون نہیں ہے، وہ سیاسی، ان کا کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو سیاست میں تو بہت بری طرح سے انوالوڈ ہے. بٹ لیٹ می ایک تو پروڈیوسر صاحب ذرا اگر مروت صاحب کی آڈیو کائنڈلی فکس کر لیں اور میں عظمیٰ کاردار صاحبہ اور شرمیلا صاحبہ کی طرف چلتی ہوں.
उस्मा कारदार साहिबा, आपको तो मेरा ख्याल है आज वैलिडेशन जो है वो शायद फील हो रही होगी, बिकॉज यू आर द फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू, जहांगीर तरीन हो, अन चौधरी हो और आप हो, जिनको जो है वो जिन्होंने पार्टी से किनारा कुशी कर ली। और आपकी तो एक ऑडियो भी जो है वो लीक हुई जिसमें आप बात कर रही थी। आप उस वक्त जो जिन का जो आप जिक्र कर रही थी कि आप उस, और आपने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट पे भी जो है वो बात की, तो वो वाकई हकीकी जिन थे, या जिस तरह इस आर्टिकल में कहा गया है कि खान साहब को ये जो है ये परसेप्शन उनकी बना दी गई थी कि इंफॉर्मेशन जो है वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो लीक करती थी अपने जो कारिंदे हैं उनके तहत बुशरा बीबी को, बुशरा बीबी आगे से एडवाइस देती थी, लेकिन जब वो चीज़ सच हो जाती तो खान साहब को लगता था कि बहुत बड़ा ये तो इनके पास रूहानी पावर्स हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। डॉक्टर मारिया, जिस टाइम की आप बात कर रही हैं 2020 की ये सारी बात है, उस वक्त तो मैं एक नजरियाती कारकुन के अलावा कुछ नहीं थी, और मैंने 12 साल खून पसीना दिया था इस पार्टी को। और मुझे एक धरना, आई नो दिस माई सेल्फ, रोज आप आती थी। मुझे जो मेरे खिलाफ पे बहुत बड़ी साजिश हुई थी, क्योंकि मैं जाहिर है खुद से तो मैंने इस तरह की कोई बात नहीं करनी थी, लेकिन इंस्टेड के बानी साहब एक नजरियाती कारकुन को बुला के तो उनकी बात सुनते, बीबी ये क्या है, ये क्या चीज है, ये क्या ऑडियो है, मुझे इसको एक्सप्लेनेशन दो। उन्होंने अपनी जो मोहतरमा थी मुर्शिद साहिबा, उनके कहने पे मुझे ना आओ देखा ना दाओ, मुझे फौरन उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। और उसकी वजह ये बताई गई कि जी ये तो बहुत नेक खातून हैं, ये घरेलू खातून हैं, और हम तो यही बयानिया किल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास कोई रूहानी पावर है, तो आपने वही बयानिए को तकवीत दी। मैं हैरत से मैं परेशान, मतलब है कि मेरा ख्याल था कि मुझे बानी साहब कहेंगे कि तुम आके कोई अपने आप को क्लियर करो, लेकिन उस वक्त आपको पता है कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर मुर्शिद थी और डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर फरागोगी थी। इमरान खान जिनको हम जानते थे, जिनके साथ हमने स्ट्रगल की थी, वो यकसर बदल गए थे 2018 के बाद, पहचाने नहीं जाते थे। उन्होंने आपने देखा है कि जितने उनके साथ नजदीक लोग थे, उसमें सरे फहरिस्त जहांगीर तरीन, अलीम खान, औन चौधरी, मैं तो खैर छोटी सी एक कारकुन थी, हम सारों को कुर्बानी का बकरा बना के उन्होंने उठा के फारिग कर दिया, और फिर वो सारी जो स्पेस थी वो खुद घेर ली मुर्शिद साहिबा ने, इसलिए क्योंकि वो टोटली कंट्रोल। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बहुत करीबी साथी थे उनके, जब उनकी डेथ हुई तो वो कराची भी नहीं गए, और ये कहा गया कि जी उस वक्त जो नईमुल हक साहब के जनाजे पे इसलिए नहीं गए खान साहब, क्योंकि उस वक्त ये ऑर्डर्स आए थे कि जी आपने पानी के पास नहीं जाना, आपने जो है पहाड़ों में रहना है। नईमुल हक साहब का जिस वक्त जब वो वफात पाए। डॉक्टर मारिया, ये नईमुल हक साहब बेचारों की तो एक कहानी थी ना। अब शुरू तो वहां से हुआ था कि जी मुझे ख्वाब आया है, आप मुझसे शादी नहीं करेंगे, निकाह नहीं पढ़ाएंगे इद्दत में, तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। फिर उनको पहाड़ों पे चढ़ा दिया, फिर उनकी जितनी उनकी जो आमदरफ्त ट्रैवल होता था, ये भी उनके इशारों पे होता था। अब आपने चलना है, अब आपने ठहरना है, अब आपने लेट जाना है, अब आपने उठ जाना है। मतलब ये वहां पे बनी गाला में गोश्त जलाने की बू, वो सारे इर्द गिर्द धागे टोने, जादू, वो स्त्रियां, वो आपने वो इनाम की कहानियां सुन ली हैं, वो इनसाइडर था, उसको इत्मीनान हासिल था इसका मुर्शिद साहिबा का, तो वो सारी कहानियां, ये सारी चीजें सही हैं, आप ये कह रही हैं, और आपकी फर्स्ट हैंड ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज भी है। अच्छा, फिर आप देखें वो काशाना वाली जो है, वो कायनात जिसके बॉडी पार्ट्स अंदर से नहीं थे, वो फोरेंसिक के बाद ये वो सारी क्या कहानियां थी, काशाना स्कैंडल क्या था, क्यों ये सारी जो थी वो, जब ये उस्मा साहिबा का मेरा ख्याल है कुछ सिग्नल का इशू आ रहा है, मैं शर्मिला साहिबा की तरफ चलती हूँ। शर्मिला साहिबा, नाउ ऑफ कोर्स वी हैव टू पीपल हु वेरी क्लोजली हैव सीन पीटीआई एंड पीटीआई इज वर्किंग, एंड देन आपके लिए ये चीज़ें कोई नई नहीं है, बट टू रीड देम
in a paper that is from the developed western world, जहाँ पे defamation laws बहुत strong हैं. और जो एक co-author हैं इसकी बुशरा साहिबा, वो ये कह रही हैं कि जी हमारे पास it was difficult for me to convince my paper, convince my management, the economist, लेकिन जब मैंने शवाहिद दिखाए तो वो convince हो गए because शवाहिद जो थे वो इतने strong थे. As a political worker, as someone who believes in democracy, एक आदमी जो कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी की जो है वो एग्जांपल्स देता थकता नहीं था, और उसके बारे में आज ये इस तरह की चीज़ आना, is it surprising, is it horrifying, how do you see this? And then of course he was running a nuclear nation. शुक्रिया डॉक्टर मारिया. देखें, जो चीज़ें आज इकोनॉमिस्ट में आई हैं वो हमारे लिए कोई नई नहीं है. हम ये बातें बड़े अरसे से सुनते थे और हमें ये इनके ही लोग आके बताते थे, जैसे अभी आके आपके टीवी चैनल पे बता रहे हैं. हमें बताते थे कि जी जनाब ये होता है, ये होता है. देखें, ये चीज़ें छुपती नहीं हैं. किस तरीके से वहाँ पर जादू टोना होता था. और हम अक्सर ये कहते थे कि ये मुल्क जो है जादू टोने पे और मुवक्किलों पे चल रहा है. अब देखिए, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक फंक्शनल डेमोक्रेसी मुल्क का वजीर आज़म एक ऐसी शख्सियत, ख्वाह वो उनकी शरीक हयात ही क्यों ना हो, लेकिन जो अपॉइंटमेंट्स के, मीटिंग्स के, ख्वाह हर चीज़ के, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के जो फैसले होने थे और जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होने थे, वो एक अनइलेक्टेड खातून जिनका सियासत से कहने को तो कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो कर रही थी और उनके कहने पे और इशारों पे मुल्क का वजीर आज़म चल रहा था. और ऐसा मुल्क विच इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट, अगर खुदा ना खास्ता इस वक्त इमरान खान वजीर आज़म होते जब इंडिया के साथ हमारी अनप्रोवोक्ड वॉर शुरू हुई, तो फिर तो ये फैसला बुशरा बीबी करती कि हमें क्या करना चाहिए. और अगर बुशरा बीबी ये फैसला कर देती कि हमें वो न्यूक्लियर बटन दबा देना है, तो फिर कितनी तबाही हो जाती दुनिया भर में, नॉट सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान. अच्छा, जो मुझे दुख है इस बात का, मरवत साहब की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ और उज़मा साहिबा की भी, मुझे दुख इस बात का है कि ये लोग सब जानते थे, इनकी जमात के लोग जानते थे. आज मैं एक और शख्स को सुन रही थी एक टीवी चैनल पे जो बीपर दे रहे थे. They were very very close to Imran Khan. They knew what is happening. They knew कि ये गलत हो रहा है. They knew कि इससे मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है. लेकिन उनका ज़मीर कभी भी नहीं जागा कि ये उस वक्त आके ये बातें करते. और शायद ये जो एक फसाद चला हुआ था और एक जो ये जादू टोना की हुकूमत चल रही थी, इसका ख़त्म पहले हो जाता. मतलब आप अपने ओथ क्यों वायलेट कर रहे हैं? यू आर नॉट मेकिंग डिसीजंस इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. यू आर मेकिंग डिसीजंस ऑन द विजन्स ऑफ योर सो कॉल्ड वाइफ, रूहानी पेशवा, जो आपकी स्पिरिचुअल लीडर बनी हुई थी. और आप वो हिसाब किताब जो भी वो करती थी, आई डोंट नो व्हाट दिस इज. इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दिस इज अलार्मिंग कि इस मुल्क के साथ ये भी हुआ है. देखिए, हमें एक अंदाजा तो था, हम सुनते थे, लेकिन आज जब इकोनॉमिस्ट में छप गया और ये कंफर्म हो गई बात, तो लिटरली इट इज वेरी वेरी अलार्मिंग फॉर अस कि किस तरीके से मुल्क चल रहा था, किस तरीके से फैसले हो रहे थे. मतलब इस मुल्क को खुदा ना खास्ता कोई बड़ी नौयत का नुकसान पहुंच सकता था. अगर आपने ख्वाब देख के सुबह उठना है और उस ख्वाब के आपने कहना है कि जी, और एक मुल्क का वजीर आजम जो कि जिसको हमारी कौम जो है वो उसकी यूथ फॉलो करती है, एक आइकन समझती थी, वो एक सो कॉल कोई सर्टिफाइड स्पिरिचुअल लीडर तो नहीं, कोई आलिमा तो नहीं है ना बुशरा बीबी. एक ऑर्डिनरी घरेलू खातून है, लेकिन उनके कहने पे अपॉइंटमेंट्स हो रही है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स. उनके कहने पे वजीर आला लगाया जा रहा है. आई लुक एट इट आल्सो एक और जाविये से भी मैं देख रही हूँ, एंड देन यू नो टेल मी इफ यू अग्री. अगर आप इस आर्टिकल को देखें तो उसमें ठीक है, इमरान खान साहब को जो है वो कहा गया कि शायद वो बहुत सादा थे, शायद उनको समझ नहीं थी, वो इतने ज़्यादा जो हैं वो तोम परस्त हो गए. लेकिन इसमें डेमोनाइज जो किया गया है वो दो चीज़ों को किया गया है. एक इदारा है उसको डेमोनाइज किया गया है, दूसरा जो है वो ऑफ कोर्स बुशरा बीबी हैं.
ताकि कल को अगर ये परसेप्शन बिल्डिंग हो, एंड ऑफ कोर्स खान साहब फॉलोइंग इज अ कल्ट फॉलोइंग, तो ये किसी तरह जो है वो उनको बीच में से निकाला जा सके कि देखें उनका तो कसूर नहीं था, ये लोग हावी थे, असल में तो इदारे, आपको पता है आजकल इदारा तो बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, इदारे ने ये करवाया, बुशरा को इस्तेमाल किया. दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. वुड यू एग्री? जी, इदारे पे हर दफा जाना कि जी इदारे ने ये किया, इदारा वो किया, ये सारे जो है ना, दिस इज नॉनसेकल टॉक. इमरान खान कोई बेवकूफ़ इंसान तो थे नहीं, इतने तो समझदार थे कि सियासी जमात बनाई करे. खैर बहरहाल जिसके भी कहने से वो आए सियासत में और फिर जिसके कंधों पर चढ़ के वो वजीर आजम बने, वो एक अलग चीज़ थी. लेकिन हियर यू टॉकिंग अबाउट अ होल कंट्री, द होल एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द कंट्री. इसमें आप डिसीजन ले रहे हैं. हर अपॉइंटमेंट देखें ना, आर्मी चीफ की भी अपॉइंटमेंट तो वजीर आजम की एडवाइस द रीजन आई से दिस इज कि इमरान खान और उनकी जो पार्टी है उसके लिए बहुत आसान है किसी और पे जो है वो अपनी जो अपनी जो गलतियां हैं उनका बोझ किसी और पे डालना. तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि कल को, नॉट नाउ बट इन द डिस्टेंट फ्यूचर, अगर इसको जो है वो दिखाया जाए कि जी बेसिकली द कल्प्रिट वाज बुशरा बीबी एंड द कल्प्रिट वाज द इदारा, बिकॉज इदारा नहीं चाहता था, इसलिए हम अपना जो है वो इस्लाहात का एजेंडा नहीं ला सके. इस आर्टिकल में तो इसी तरह लिखा गया है ना कि वो नहीं इसलिए नाफिज कर सके. दिस इज द वे आई सी इट. नहीं जी, देखिए इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. दे कैन से व्हाटएवर दे वांट, वो कुछ भी कह सकते हैं. जाहिर बात है अपना आपको डिफेंड तो करेंगे, इनकी जमात तो डिफेंड करेगी. लेकिन बात ये है कि दिस इज अनडिफेंडेबल. इस मुल्क की तारीख में हमने बड़े बड़े डिबैकल्स देखे हैं, लेकिन ऐसा डिबैकल नहीं देखा कि जादू टोने के ऊपर ये मुल्क चला हो, जादू टोने के ऊपर अपॉइंटमेंट्स और सारी चीजें हों. दिस इज अनफॉर्चुनेट, एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट. विल हैव टेक अ शॉर्ट ब्रेक. ब्रेक से वापस आते हैं तो मनवर साहब का भी ओपिनियन इस पे लेंगे. दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. डू स्टे विद अस. पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन. सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान. तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक. 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें. खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं. अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज. मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान. डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. मरवत साहब की जाने चलती हूँ. शरीफ साहब को आप ये बहुत इससे बखूब वाकिफ़ हैं कि नैरेटिव बिल्डिंग में मेरा ख्याल है कि आपकी जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उससे कोई जो है वो ऊपर नहीं है नैरेटिव बिल्डिंग. एंड अगेन खान साहब की अपनी जो है वो एक कल्ट फॉलोइंग है. तो जो वो नैरेटिव बनाते हैं, जिस जाविये से लोगों को चीज़ें दिखाते हैं, लोग उसी तरफ जो है वो गामजन हो जाते हैं. क्या आपको लगता है कि इस, बिकॉज आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लॉबिंग जो है वो की जा रही है, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे आपने भी कई दफ़ा कहा है कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो किसी और के इशारे पे जो है नाचते हैं, किसी और के इशारों को जो है वो फॉलो करते हैं. कुड दिस ऑल्सो बी अ फेल्ड अटैम्प्ट लॉबिंग के लिए? इस वक्त एक फेल्ड अटैम्प्ट कि जिसमें एक तरह से मजाक बन गया है खान साहब का कि वो किस किस्म के जो है वो वीक प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन आने वाले दिनों में डिस्टेंट फ्यूचर में ये उनकी एक जो परसेप्शन बिल्डिंग है उसके लिए इस्तेमाल भी हो सकते हैं कि हाँ जी बहुत सादा थे लेकिन वो करप्ट नहीं थे, करप्शन कोई और कर रहा था, करप्शन इदारा कर रहा था और बुशरा बीबी उनकी जो है फैसिलिटेटर थी. देखिए, पहली बात तो ये मुझे बड़ा दुख होता है कि ये इदारा जो है सरकारी मीडिया पे जो है इस इदारे को हर वो काम एट्रीब्यूट किया जाता है जिसकी गिरावट के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है. अब इनके सारे काम इनके ये ऐसे ही है.
थोड़ा सा तो मतलब इस इदारे पर भी रहम कर लें कि ये इदारा जो है अमलियात, तावीज़ात, रूहानियत, वज़ाइफ, इस्तिखारे और बातनी मशवरों में भी मुलव्वस रहा है। मैं सिर्फ इतनी अर्ज करूंगा कि ये जो हमारी बहन ने बात की, इनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि क्या मोहतरमा सईद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी वो वज़ाइफ नहीं करती थी, वो इस्तिखारे नहीं करती थी, बातनी मशावरत नहीं किया करती थी और रूहानी रियाजत नहीं किया करती थी? क्या बाबा दैनका की मज़ार पे नहीं जाया करती थी? क्या वो नंगे पाँव जो है हुजरे रसूल और हरम शरीफ में जो है हाथ में चप्पल उठा के नहीं दाखिल हुआ करती थी? अगर आप देख लेना सिंध पंजाब में बिलखसूस ये जो रूहानी माहौल है वहाँ चिश्ती और नक्शबंदी रिवायत जो है वो साथ साथ चलती है और खानदान तरबियत और मुआशरी की माहौल जो है वो लोगों को इसमें परो देता है। जहाँ तक बुशबीबी का ताल्लुक है, मीडिया ने, मुखालिफिन ने, एग्जेजरेशन ने उसको एक मिस्टिकल शख्सियत या एक पुरअसरार हस्ती बनाया हुआ है और मुखालिफिन की नजरों में शेडो प्राइम मिनिस्टर रही है। हालांकि हकीकत कुछ यूं है कि वो न छीला खुशबुजर्ग है, न कोई सूफी सिलसिले की कोई शेख है और न कोई गैबी ताकत की मालिक है। शेरअब्दुल साहब, आप यू आर समवन के जो फैक्ट्स पे बात करते हैं। रूहानियत की बिल्कुल चलें, रूहानियत एक अपनी जगह, लेकिन उस रूहानियत पे इतनी चीज़ें कि जी प्लेन 4 घंटे लेट होगा, या आपने पंजाब का जो सीएम है जो एन से जिसका नाम शुरू होता है वही लगाना है और फिर उस्मान बुज़दार जैसा कैरेक्टर जो है वो सामने आ जाता है। फिर वहां पे गोगी साहिबा जो हैं वो किस तरह जो है मामलात चलाती रही हैं। अदरवाइज एनीवन इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, आप अगर प्राइम मिनिस्टर के मनसब पे होते, क्या आप उस्मान बुज़दार जैसे आदमी को जो है तैनात करते पंजाब के लिए? मतलब ये तो चीजें ये नहीं है ना कि सिर्फ सुनी सुनाई है, देखी भी हैं। देखिए बहुत सारी सुनी सुनाई भी है, इस तरह भी नहीं है। उस्मान बुज़दार का नाम एन से किधर शुरू होता था? वो तो सरदार उस्मान बुज़दार शनाख्ती कार्ड में लिखा हुआ है। सरदार तो एक लकब है ना, उस्मान उनका नाम तो उस्मान है, एन से उस्मान नहीं, नाम वो बगैर सरदार के अपना नाम लिखता ही नहीं है। किसी सरदार को कहो कि भाई तुम सरदार नहीं हो, वो बुरा भी मान जाते हैं। दूसरी बात ये है, मैं ये नहीं है, सिर्फ इतना कहता हूं कि एग्जेजरेशन किसी हद तक हो। बेशक बुशरा बीबी की कबूलियत खान के पास बहुत ज्यादा है। ठीक है। खान साहब बैसियत शरीक हयात उनकी बहुत ही ज्यादा अकीदत तरबी रखते हैं और मोहब्बत भी करते हैं उनसे। मैं मतलब ये इतनी जो उनके माबेन जो बांड है और जो खान जितनी ज्यादा जो है वो आप इश्क में कहें या मोहब्बत में जो मुब्तला है, बहुत कम लोग हमने ऐसे देखे हैं। और जाती तौर पे जो है, जो खान कहते थे कि सियासत में इसका ये नहीं है, सियासी खातून नहीं है, वो इस सेंस में कहते थे कि सियासी तौर पे पीटीआई के अंदर ना उनका कोई मर्तबा था, ना वो उस में इस तरह कोई इन्वॉल्वमेंट थी। हाँ, ये मैं खुद मानता हूँ, इसमें कोई इनकार नहीं है। ये जो मोहतरमा करदार साहिबा बता रही थी, मुझे भी निकलवाने के पीछे मैं आपको बता दूं, शायद किसी ने ये भी खान के ज़हन में डाला था जी कि हाशिए और आदात जो है वो कुछ यही सजेस्ट करते हैं कि ये आपसे दूर रहे। नहीं तो फिर ये देखें शरद साहब, या तो फिर आप सीधी बताएं कि ये किसने डाला, बिकॉज जो जहाँ तक रूहानियत की बात है वो बुशरा बीबी के अलावा तो किसी की बात नहीं सुनते ना, तो फिर ये किसने डाला? ज़ाहिर है अलीमा साहिबा तो ये नहीं कह सकती, ना ही उनके पास कोई रूहानी इल्म है, कोट अनकोट रूहानी इल्म उनके पास कोई नहीं है, तो फिर ये किसने डाला? ये फिर बुशरा बीबी पे इशारा जाता है ना, उंगली तो वही उठती है। मोहतरमा अलीमा खानम के पास जो इल्म है वो दुनियावी इल्म है, और रूहानी इल्म जो है वो यकीनन रूहानी इल्म तो कहें या रूहानियत की तरफ झुकाव कह लें। अलबत्ता इस हद तक मैं आपकी बात दुरुस्त तस्लीम करता हूँ कि खान साहब जो है अपने सियासी फैसलों में रूहानियत की बुनियाद पे रहनुमाई लेते रहे हैं इनसे। अब इसको आप सियासी इन्वॉल्वमेंट कहते हैं, लेकिन एक बात हकीकत है कि बुशरा बीबी जो है वो जहां तक मैंने देखा है जिंदगी के रोजमर्रा के अवामिल में और अल्फाज की अदायगी में, उठक बैठक में, उनको मैंने हमेशा एक बाहया
पर्देदार खातून पाया है। शेर अफजल साहब, आप बात कर भी गए, आपने बता दिया कि आपके बारे में भी कहा गया कि उनसे दूर रहना आपके लिए बेहतर है खान साहब से, फिर आप उसमें जो है वो बुशरा बीबी की तारीफें भी कर रहे हैं। चले मैं समझ मैं एक मिनट जी 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 ये खान रूहानियत के हवाले से हर तरफ से मुस्तफीद होते हैं। जो भी उनकी कान में बात डाल दें तो वो देखिए सिर्फ बुशरा बीबी तो नहीं है। लेकिन अगर बुशरा बीबी कहती कि आप कहते हो बहुत उनका इन्फ्लुएंस भी है, तो अगर बुशरा बीबी को आप जो है वो पसंद होते तो ये भी तो कह सकती थी कि ये तुम्हारा बहुत लॉयलिस्ट है, इसको साथ रखो, इसको मत हटाओ, ये भी तो चीज है। लेकिन जाहिर है कि किसी ऐसी जगह से आया था कि ना नहीं कर सके। हम आपको मजीद जी एक मिनट, मैं अगर उनको पसंद होता ना कभी निकाला ना जाता। यही तो बात कर रही हूँ, यू जस्ट एंडोर्स्ड माय पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। मैं जरा उस्मा साहिबा की तरफ चलूँ। उस्मा साहिबा, क्या आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में हमें इस तरह का भी कोई नैरेटिव बिल्डिंग होगा कि जी ये सब कुछ इदारे ने करवाया, बिकॉज जैसे अमेरिका ने करवाया, सऊदी अरेबिया ने करवाया, सब कुछ जो है किसी और ने करवाया, पीटीआई अपने लिए तो कोई अकाउंटेबिलिटी और अपने ऊपर कोई परों पर पानी तो पड़ने देती नहीं है, तो हर चीज़ किसी और का कसूर होता है। तो ये भी जो है आपको लगता है आने वाले दिनों में ये जो है वो विलन बनेंगे इदारा, और बुशरा बीबी और खान साहब बहुत मासूम थे, ठीक है उनसे गलती हुई, लेकिन इसमें मैलिफाइड इंटेंट कोई नहीं था। देखिए मारिया, ये तो ओपन नॉलेज है, इनकी गाली गलौज ब्रिगेड है, ये सोशल मीडिया की पार्टी है, और ये इसमें सियासी क़यादत तो अब कोई रही नहीं है। वो अजहर माशवानी और जिब्रान इलियास टाइप के लोग जो हैं वो ईमेल्स के थ्रू, लीमा खान के थ्रू वो सारा नैरेटिव जो अडियाला से जाता है, ये नैरेटिव नहीं होता, ये स्पिन स्टोरीज होती हैं। इसको किस तरह से घुमा फिरा के सच झूठ को सच में गुडमुड करके लोगों को गुमराह किस तरह से करना है, उनकी जेल साजी किस तरह से करनी है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये बॉट्स और ये जितना इनका जो का सिलसिला है ना सोशल मीडिया पे, ये लाइक्स और ट्वीट्स और इनके जो सारे ये सारा ये उससे चल रही है पार्टी आगे। तो बिल्कुल आप इसको एक्सपेक्ट करें। अभी कुछ अरसे पहले इनका जो इकोनॉमिस्ट में छप गया था आर्टिकल, तब बड़ी वाहवाही हुई थी, तब तो उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिस्ट से बेहतर कोई है ही नहीं दुनिया में। उस्मा साहिबा, रिमेन्स टू बी सीन, आपको याद है कि जो जियो टेलीविजन है उसको डेफेमेशन का जो है वो खान साहब कहते गए, जब उमर फारूक ज़हूर वाला तोशाखाना वाला केस था कि मैं आपको यूके में जो है वो डेफेमेशन नोटिस सर्व करूंगा और आपको वहां पे जो है पता चलेगा, वो नहीं हुआ। तो रिमेन्स टू बी सीन कि डेफेमेशन होता भी है कि नहीं होता। इनको पूरा पता है वहां के कानून कितने सख्त हैं, ये कुछ इन्होंने नहीं करना है। इन्होंने लोगों को कोई ऐसी और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है कि आप हैरान होके कहेंगे कि ये क्या है, इसका ये तो सोचा ही नहीं था। दूसरा मैं शर्मिला साहिबा को एक जरूर जवाब देना, वो कह रही है कि जी ये के साथ थे, क्यों नहीं इनको छोड़ा। तो शर्मिला साहिबा से मैं कहूंगी, मैं इनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, मैंने तो पीटीआई को तब छोड़ा जब वो अरूज पे थी, मैंने तो अपनी एमपीशिप जो थी वो भी उसी पे कुर्बान कर दी। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि मुझे इबरत का निशान इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों की जुबान बंदी कर मजीद की जाए पार्टी में। मुझे महमूद रशीद हैं, वो मिनिस्टर थे उस जमाने में, सीनियर मिनिस्टर थे, जब मेरा ये केस हुआ था उन्होंने कहा था उस्मा तुमने तो हमारी तोते उड़ा दिए, होश उड़ा दिए, हम तो इससे 300 गुना ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन अब हमें सबको सांप सूंघ गया है। हमें पता है कि अगर हमारे ऊपर कांटा लग गया तो हम फारिग हैं। और आपको पता है वो अलीम खान ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोई भी सेक्रेटरी तैनात करना होता था, चाहे वो सेंटर में हो या पंजाब में हो, उसकी तस्वीर बकायदा जनाब मुर्शिद साहिबा के पास जाती थी, अगर वो उसको टिक करती थी तो वो जनाब, और इस आर्टिकल में भी इसी तरह की चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा, कांटा मार देती थी तो वो फारिग, ये सब सबूत हैं। शर्मिला साहिबा, मैं जरा शर्मिला साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। शर्मिला साहिबा, ऑब्वियसली डेफेमेशन लॉज जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है यूके में, पाकिस्तान वाला तो चीज हाल नहीं है। अब अगेन बैरिस्टर गौहर साहब ये बात कर रहे हैं कि हम डेफेमेशन का केस जो है वो करेंगे। माजी अगर देखा जाए इस तरह की बातें जो हैं वो जियो के बारे में भी की गई कि हम आपको प्रोग्राम उनका जो था जिसमें ये इंकशाफ हुआ तोशाखाना के हवाले से, बट दैट नेवर हैपेंड। डू यू सी दिस हैपनिंग कि वाकई आपको लगता है कि डेफेमेशन का केस ये फाइल करेंगे? इतना इनको लगता है कि इनका केस स्ट्रॉन्ग है, या इतनी गलत चीज़ें लिखी गई हैं कि दे विल बी एबल टू प्रूव इट रॉन्ग?
देखिए वो डेफेमेशन केस करें ना करें, वी ऑल नो कि व्हाट द ट्रूथ इज। अब करते हैं तो शायद फेस सेविंग हो जाए, नहीं करते तो जिस तरह आपने कहा कि पहले भी नहीं करा तो अब भी बट ये नहीं उस तरह करेंगे। तो नहीं है ना, ये लेकिन पाकिस्तान वाला बात ये चीज तो नहीं है, है कि डेफेमेशन वहां पे करते हैं और गलत होती है तो दे विल हैव टू पे। जाहिर बात है हाँ, यू आर गोइंग टू सू द इकोनॉमिस्ट ना, या तो जाहिर इकोनॉमिस्ट ने भी अगर छापी है तो ओवरवेलमिंग एविडेंस होगा, तो छापी है ना, इट्स नॉट ऑन हियर से। लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं बात करना चाह रही हूँ, वो मरवत साहब की बात का जवाब देना चाह रही हूँ। एक तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को आप इस पूरे मामले से बराए मेहरबानी दूर रखें। ये बात करते हुए भी आपको थोड़ी सी नदामत होनी चाहिए कि एक इतनी अजीम हस्ती को, जिसने इस कौम की खातिर, इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर शहादत नोश की, उसको आप बुशरा बीबी से कंपेयर कर रहे हैं। नंगे पैर ज़ियारतों पे जाना या इस्तिखारे करना, ये दिस इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन, हम भी करते हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर फ़ैसले करना, ये एक मुसलमान बहैसियत एक मुसलमान हमारा बड़ा पुख्ता ईमान है, हम बिल्कुल करते हैं। लेकिन बीबी शहीद एहतराम करती थी तमाम मज़ारों का, बीबी शहीद एहतराम करती थी तमाम जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, और बीबी शहीद वॉज अ स्टॉन्च मुस्लिम। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो जादू टोने की हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है सर कटे जानवरों की, न जाने क्या क्या। आई डोंट इवन वांट टू गेट इनटू दिस। और बीबी शहीद जो है वो इस तरह फैसले नहीं करती थी। बीबी शहीद जो है वो किसी अनइलेक्टेड शख्स से जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल बात करें, जिसका ना सर ना पैर, उस पे हुकूमत नहीं चलाती थी। सो ये कंपैरिजन ही बड़े अनफॉर्चुनेट है। मुझे दुख हुआ कि मरवत साहब ये बात कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इस वक्त जो बात हो रही है, ये मुल्क अनफॉर्चुनेटली वो 3 साल इसलिए मुल्क का दिवालिया निकलने वाला था क्योंकि आप अपनी बीवी को, ठीक है आपकी बेगम है, आप बिल्कुल उसको एक हाई पेडिस्टल पे रखें, हाई मॉरल ग्राउंड पे रखें, लेकिन आप फिर उसके हाथों में इस मुल्क की भागदौड़ तो ना दें ना। दिस इज मतलब अनफॉर्चुनेट। आप एडवाइजर्स की बात नहीं सुन रहे, हु आर अपनी फील्ड के जो हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, आप पॉलिटिकल उनकी नहीं लोगों की सुन रहे और बात नहीं उनकी सुन सुनी रहे। जा रही है, और आप सेंसिबल बात नहीं कर रहे, और आप इस मुल्क में अपॉइंटमेंट से लेके मीटिंग से लेके उनकी टाइमिंग से लेके फैसले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ख्वाब आते थे। दिस इज अनफॉर्चुनेट। इस पे तो यू नो आई फील सैड कि आज हम इस मुल्क में इतने सारे मसाइल हम डिस्कस ये कर रहे हैं बिकॉज इस मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती हो गई। अच्छा मरवत साहब, बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, मैं आपसे एक जानना चाहती हूँ। मैं इब्तदाई में मैंने कहा हम सब जानते हैं कि खान साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है 5 साल की, वो 2027 में जो है वो टाइम फ्रेम उसका ख़त्म होगा। क्या आप समझते हैं कि जब ये ख़त्म होगा तो ये आर्टिकल अगर यहाँ पे जो है जिस तरह अभी बात की जा रही है, आपकी पार्टी जो है वो सू नहीं करती या आपकी पार्टी वहाँ डेफेमेशन केस करती है और हार जाती है, जो भी है, आपको लगता है 63(1)(b जो है लागू हो सकता है, या हुकूमत जो है इसको लागू करने की कोशिश कर सकती है, जिसमें ये बात की गई है कि जो भी होगा वो साउंड माइंड बहुत ज़रूरी है, कि ही शुड हैव अ साउंड माइंड, अदरवाइज डिस्क्वालिफिकेशन इस पे भी जो है वो हो सकती है। डॉक्टर साहबा देखें, आप तो पढ़ी लिखी है, ये अब सियासी अदावत में खान की मेंटल कैपेबिलिटी से सवाल उठाना मुनासिब नहीं है कि हम ये जो शर्मिला फारूकी साहब ने एक बात की, मैंने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जिक्र किस अंदाज में किया? आप मुझे निजामत की बात कर रही है, मैंने तो ये कहा कि भाई वो भी माइल की तसव्वुफ की तरफ, रूहानियत की तरफ, ये तो मैंने बात की है। और अगर आप तकाबुली जायजे की बात कर रही है तो बुशरा बीबी भी खातून अव्वल रही है, इमरान खान की बीवी है, तो इस तरीके से जो है बिलिटल तो नहीं किया जा सकता। मैंने तो मोहतरमा के लिए बड़े हमेशा सारी जिंदगी भर अदा किए हैं। ये मैंने कंपैरिजन के तौर पे बात नहीं की, मैंने उनके खवास बताए। वो भी एक दीनी खातून थी, एक शराफत की पेकर थी। और बट ये दीन है। देखें, दीन आपको इस्तिखारे की भी इजाजत देता है, दीन आपको जो है वो आप मज़ारों पे जा रहे हैं, हाजिरी दे रहे हैं, वो एक हर बंदे का अपना दीन है। बट जादू टोने की जो बात है ना, तोम परस्ती जो है, देखिए तमाम परस्ती तो एक अलग चीज है, जादू टोना एक अलग चीज है। जादू टोने का कोई पैरोकार होगा
किसी ने कोई शहादत दी है, कोई जादू का कोई अमली मुजाहरा देखा हो तो बात हो। ये तो सारी मीडिया की एग्जैजरेशन है, मुखालिफिन की बातें हैं। सर यही बात है ना कि जादू टूना, अगर ये एक परसेप्शन बनाया गया था, लेकिन बकौल आर्टिकल के कि उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो चीज़ें फीड करती थी, बुशरा बीबी बताती थी ऐसे होगा, जब वो हो जाता था खान साहब का जो ईमान है उन पे और पुख्ता होने लग गया, जिसकी वजह से बकौल आर्टिकल अगेन वो जो उन्होंने फैसले लिए। बट मारूफ साहब टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर प्रेजेंस, आप एक लॉयर हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप मतलब क्या हम किसी के साउंड माइंड की बात करें या जो भी आप कह रहे हैं जी क्या इसमें बात करनी है, बट आई एम जस्ट सेइंग सियासत में एवरीथिंग इज पॉसिबल। टुमारो कैन दिस आर्टिकल बी यूज्ड कि जी ये तो मेंटली अनफिट है, ये नॉट साउंड, नेवर, नॉट एट ऑल, सारे ये मफरूजे हैं। अच्छा। और फिर जिक्र बुशरा बीबी का है और तोप रहे खान पे। खान की मैंने आपको वजाहत से बताया कि एक हद तक उनका सर रसूख है खान पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि सियासत में इतनी दूर की कोड़ी लाना कि जी आर्टिकल 63(1) जो है इन पे लागू होगा, ये वैसे मजाक के मुतरादिफ है। सर लेकिन आपके आइन के आर्टिकल एग्जैक्टली वो इसी बारे में बात करता है ना। एंड अगेन पॉलिटिक्स में लाइक आई सेड इस मुल्क में तो एनीथिंग इज पॉसिबल, तो कुछ भी चीज़ें जो है वो अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाती 5 साल बाद, तो मतलब आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर हुकूमत इसको जो है वो इसको यूज़ करके, इस आर्टिकल को यूज़ करके, स्पेशली अगर आपकी जो पार्टी है वो कोई इसके खिलाफ जाती नहीं है या कुछ विन नहीं कर सकती हुकूमत पीटीआई ने ऐलान किया है कि इसको सू करेंगे। सर लेकिन वो तो जियो को भी कहा था सू करेंगे, तोशाखाना केस में उमर फारूक जहूर वाला जो था उसमें उनको भी कहा था। दूसरी बात यह है कि 5 साल की कोई गारंटी नहीं है, ना हुकूमत की गारंटी है और ना खान की कन्विक्शन की गारंटी है। पाकिस्तान में आए दिन कवानीन तब्दील होते रहते, पता नहीं कल किस्मत की दीवी किस पे। सर आपने मेरी खुद ही बात को एंडोर्स कर दिया, बिकॉज यहाँ पे कवानीन और चीजें बदलती रहती हैं, इतनी तेजी से बदलती हैं कि आई वुडंट बी सरप्राइज कि अगर इसको भी जो है वो इस्तेमाल किया जाए। बट जहाँ डेफेमेशन की बात है तो उमर फारूक जहूर वाला केस हम सबके सामने है, उस पर आज तक पीटीआई ने जो है नहीं किया, उस पर तो खान साहब ने खुद ऐलान किया था। मेरा ख्याल है कि इस पे आप एक अलग डिस्कशन रख ले, ठीक है, क्योंकि मैं एक फंक्शन में पहुंच गया हूँ, बाद में अगर तो हम तफसील। हम वैसे भी प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल। थैंक यू फॉर योर पर्सपेक्टिव शेरफ मजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शर्मिला साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, और उज़मा साहिबा आपका भी शुक्रिया कि यू मेड टाइम फॉर द प्रोग्राम। रिमेन्स टू बी सीन जी कि डेफेमेशन का केस जो है वो फाइल होता है इकोनॉमिस्ट के खिलाफ या नहीं, लेकिन लगता यही है कि एक पेपर ने अगर इतनी तहकीक करके, और जैसे उनकी जो इस आर्टिकल की ऑथर है जो सही है कि मैंने अपनी मैनेजमेंट को बड़ी मुश्किल से जो है मनाया, बट व्हेन दे सॉ डैमिंग इंडाइटमेंट जो उनके सामने शवाहिद रखे गए, तो उस पर दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू से येस। रिमेन्स टू बी सीन व्हाट हैपेंस। वी विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।